سب سے پہلے بات کریں گے فیصل آباد میں ذرا سی لاپرواہی کم سن زندگی کھا گئے۔ چک 202 بھائی والا میں گیس لیکیج سے دھماکہ، ایک بچی جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک معمولی غلطی انسانی زندگی کا چراغ گل کر گئی، شہریوں کا مالی نقصان بھی ہو گیا۔ بھائی والا 202 ریبے میں صبح سحری کے وقت گیس کھلی رہنے کی وجہ سے زوردار دھماکہ ہو گیا، ملبے تلے دب کر ایک بچی جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے لائٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والی بچی کے والد کا کہنا تھا کہ گیس کھلی رہنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور میری بیٹی کی جان چلی گئی۔ میرا گھر کا نقصان ہوا ہے، میری بیٹی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ رات 10 بجے کے بعد گیس بند ہو گئی تھی، صبح آئی کچھ 4 بجے گئے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ گیس کی وجہ سے ہوا ہے، گیس کی وجہ سے ہوا ہے اور سلنڈر نہیں پھٹا، اور میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہم مریم نواز صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ادھر بھائی والا کا دورہ کریں، نقصان کا ازالہ کریں، ان کا انسانی ہمدردی کے طور پر بھائی والا میں ضرور تشریف لائیں۔ گیس دھماکے سے 5 قریبی مکان بھی متاثر ہوئے اور شہریوں کا مالی نقصان بھی ہوا۔ کسی کا رکشہ ملبے تلے آ گیا تو کسی کی پرچون کی دکان حادثے کی نظر ہو گئی۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ہم پنجاب حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے، ہمارے گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا جانا چاہیے۔ ہم بھی یہی کہیں گے کہ وہ مریم نواز صاحب ادھر تشریف لائیں بھائی والا میں، اور جو ہمارے علاقے کے جو بچے متاثر ہیں ان کے ساتھ بھی، یہ میرا جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ بھی متاثر ہے، اس کا چھوٹا بھائی متاثر ہے، ہماری 2 بہو ہیں ان کی بھی ٹانگیں بہت متاثر ہو چکی ہیں، اور ہمارے جو گھر کے تمام کمرے ہیں وہ بالکل صفحہ 80 سے ملیے میٹ ہو گئے ہیں۔ سر میری کرانے کی دکان تھی، گھر میں بنائی تھی، بچوں کا رزق چل رہا تھا اس میں سے، تو وہ ساری جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ جب بم بلاسٹ صبح 4 بجے ہوا تو وہ فریج ہمارے گھر میں آئی، وہ آگ کے شعلے بڑک رہے تھے، اٹھے تو میرے گھر میں سر آگ ہی آگ تھی ہر طرف۔ شہریوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ حسین اقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں خسرے کی وبا پھیلنے کا خدشہ، حفاظتی ویکسین کے باوجود متاثرہ بچوں کی تعداد میں اضافہ۔ رواں سال 171 مشتبہ اور 11 کمسن بچوں میں خسرے کی موجودگی کی تصدیق کی گئی۔ فیصل آباد انتظامیہ کی غفلت یا محکمہ صحت کی لاپرواہی، حفاظتی ویکسین موجودگی کے باوجود خسرہ کے مریض رپورٹ ہونے لگے۔ رواں سال 171 مشتبہ اور 11 مریض بچوں میں خسرہ موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ خسرہ کے شکار بچوں کو گھر کی دہلیز پر حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ DHU ڈاکٹر عصمت عباس کا کہنا تھا کہ والدین میں بھی مہلک مرض کی آگاہی کے لیے سیمینار کرائیں گے۔ 170 بچے جو ہیں وہ سسپیکٹڈ کیس ہیں، وہ ڈیفرنٹ اسپتالوں میں ہیں، الائیڈ میں ہیں، الائیڈ 2 میں ہیں، چلڈرن میں، اور کنفرم میزل کے جو ہیں وہ ابھی تک 11 پیشنٹ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی یونین کونسل میں، کسی تحصیل میں یا ایون ڈسٹرکٹ میں کوئی آؤٹ بریک جو ہے میزل کی وہ نہیں ہے، یہ جسٹ روٹین کے پیشنٹ ہیں۔ DHQ ڈاکٹر عصمت عباس کا کہنا تھا کہ خسرہ کے مریض بچوں کو الائیڈ ہسپتال 1، 2 اور چلڈرن ہسپتال میں علاج کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ہم نے یہی اویئرنیس دی ہے کہ جس بچے کو فیور ود ریش ہو تو اس کو آپ فوری طور پر ہسپتال میں لے کر آئیں، کسی مستند ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور جن پیرنٹس کے بچے وداؤٹ ویکسینیشن ہیں وہ قریبی ویکسینیشن سینٹر پہ بچوں کو میزل کے انجیکشن لگوائیں۔ ضلع میں بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے۔ متاثرہ مریضوں کی عمریں 5 سال تک ہیں۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور ناظرین، فیسکو عملہ مال بناؤ پالیسی پر عمل پیرا، تار کے پیسے لینے کے باوجود میٹرز کھمبوں پر لٹکانے لگے۔ باواچک میں کھمبوں پر میٹرز کی بھرمار، صارفین اذیت کا شکار۔ فیسکو عملہ تار کے پیسے کھانے لگا، یہ معاملہ کچھ اور۔ تار کی کمی کی آڑ میں صارفین کے میٹرز بجلی کے کھمبوں پر لگائے جانے لگے۔ ڈیمانڈ نوٹس میں 40 میٹر تار کے پیسوں کی وصولی کے باوجود صارفین کو چند فٹ تار پر رکھایا جانے لگا۔ باواچک میں کھمبوں پر میٹرز کی بھرمار، میٹرز کی جھرمٹ سے ناخوشگوار واقعات رونما ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ فیسکو پیسے وصول کرنے کے باوجود تار نہیں دیتا، شہری پھٹ پڑے، بولے کھمبوں پر لٹکائے میٹر سے حادثات کا ذمہ دار فیسکو ہوگا۔ اسی طرح وابڈا کے خلاف لوگ بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اپلیکیشنیں دیتے ہیں وابڈا کے SDO کے پاس جا کے۔ جو بجلی کے میٹر ہیں ان کا ڈیمانڈ نوٹس میں بجلی کی تار جو ہے نا وہ پے کرتے ہیں، لیکن وابڈا والے جو ہے نا وہ بجلی کی تاریں آپس میں اس کے پیسے کھا جاتے ہیں، اور بجلی کے جو میٹر ہیں وہ کھمبوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بارش کے دنوں میں اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، تار کے پیسے کھاتے ہیں، میٹر کے پیسے لیتے ہیں اور مرتے ہیں بیچارے غریب شہری۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے باواچک سپر مارکیٹ میں بجلی کے کھمبوں پر لٹکتے میٹرز کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔
यहाँ आगाह करेंगे, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के सूबाई हल्का PP 100 में दोबारा गिनती के बाद पांसा पलट गया। PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की फतह शिकस्त में बदल गई। मुस्लिम लीग नून के खान बहादुर डोगर जीत गए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का PP 100 में दोबारा गिनती के नतायज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोबारा गिनती में खान बहादुर डोगर ने कामयाबी हासिल की। इससे कबल आम इंतखाबात में उमैर वसी जफर कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार खान बहादुर डोगर कामयाब करार पाए। उमैर वसी जफर की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। नाज़रीन, पंजाब भर में नेगहबान रमजान पैकेज की तकसीम जारी। फैसलाबाद में मुस्तहिक अफराद तक राशन की फराहमी का जायजा लेने के लिए अर्बन यूनिट टीम्स का सर्वे जारी है। गरीब लोगों में राशन की तकसीम काबिल तहसीन इक़दाम। फैसलाबाद तहसील सिटी सदर के मुख्तलिफ इलाकों में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम का अमल जारी। मुस्तहिक अफराद तक राशन की फराहमी का जायजा लेने के लिए अर्बन यूनिट की टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शन सर्विस में मुस्तहिकीन को अशिया मिल रही हैं या नहीं चेकिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अर्बन यूनिट जीशान का कहना था कि तमाम अशिया थैले में मुकम्मल हैं या नहीं चेकिंग की जा रही है। क्वालिटी और मकदार को भी चेक किया जा रहा है। घर घर जाके लोगों के इंटरव्यूज भी कर रहा है, जिसमें क्वांटिटी, क्वालिटी और घर के दहलीज पे पहुंचने के लिए की रिपोर्ट जो है वो डेली बेसिस पे क्रिएट कर रहा है, जिसको चीफ सेक्रेटरी पंजाब और CM पंजाब के सामने प्रेजेंट डेली बेसिस पे किया जा रहा है। रमजान पैकेज में 10 किलो आटे का थैला, चीनी, बेसन, घी और चावल 2 किलोग्राम की मिकदार में मौजूद हैं। प्रोग्राम पर 30 अरब के करीब बजट खर्च हुआ। कैमरामैन रामिश के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में घी कंपनीज आवाम का खून चूसने लगी। रमजान में रिलीफ की बजाय घी 10 से 12 रुपए किलो महंगा कर दिया। टेक सिंह में घी कंपनियां आवाम का खून चूसने लगी। रमजान में रिलीफ की बजाय घी 10 से 12 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। मार्केट में दुकानदारों ने घी की फरोख्त शुरू कर दी। मुख्तलिफ कंपनियों ने फी किलो कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा किया है। कराची कंपनी का घी 360 से 390 तक पहुँच गया। लोकल ब्रांड्स की फी किलो कीमत 5 रुपए बढ़कर 430 रुपए हो गई। शहरियों का कहना है कि मजदूरी करने वाले के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए वरना गरीब मर जाएगा। महंगाई के मारे अवाम की चीखें निकल गयी। मजदूरी है नहीं, गरीब आदमी ऐसे एक दिहाड़ी लगती है नहीं लगती। महंगाई लई पे ना को आटा सांड लभदा जब भी तक लित्तर मार्ग पे आटा चढ़ेंदे घ्यो लैन जब भी रात को कुंडी भी नहीं पकती। दसो करिए कि असी गरीब आदमी ऐसे बहुत मजबूर हो गए हैं। मजदूरी है नहीं जी, ते बहुत जड़ा ना तकलीफ बन रही है जी। अशियाए खुरोनोश की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी। मार्केट में दुकानदार मन मर्जियां करने लगे। सरकारी रेट लिस्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा साबित होने लगी। शहरी जिला इंतजामिया से नाला। कहा रमजान में भी माफिया आवाम को तकलीफ पहुंचा रहा है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से रिलीफ और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। ये रमजान मुबारक में इस्लाम मुल्क में जहाँ भी जाओ वहाँ अल्लाह की रजा होती है और इधर कत्ले आम होता है। ये हमारा आरज़ू है भाईजान, कम से कम रमज़ान के महीने में हर चीज़ थोड़ा सा सस्ता कर दे। शहरियों ने हुकूमत से घी की कीमतों पर रिलीफ मांग लिया। कैमरा टीम के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग इंतजामिया का रमजान में एहसन इक़दाम। अंजुमन ताजरान की मुशावरत से नई कीमतों का तयन। अशिया खुरोनोश की कीमतें मामूली रद्द-ओ-बदल के साथ नाफिज कर दी गई। जंग इंतजामिया की जानिब से रमजान में अशिया खुरोनोश की नई कीमतें मुकर्रर। हुकूमती निरखनामे के मुताबिक काला चना 220 रुपए से कम करके 215 रुपए और मॉडल बाजार में 210 रुपए फी किलोग्राम। चना सफेद 275 रुपए से कम करके 260 रुपए और मॉडल बाजार में 255 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त होगा। दाल चना 200 रुपए से कम करके 190 रुपए और मॉडल बाजार में 185 रुपए, जबकि बेसन 205 रुपए से कम करके 200 रुपए और मॉडल बाजार में 195 रुपए फी किलो किया गया। दाल मसूर 310 रुपए से कम करके 305 और मॉडल बाजार में 275 रुपए। दाल माश का रेट 500 रुपए से कम करके 480 रुपए और मॉडल बाजार में 475 रुपए। दाल मूंग 260 रुपए से कम करके आम मार्केट में 250 रुपए, जबकि मॉडल बाजार में 245 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर किए गए। सार्फिन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कीमतें मजीद कम करने की अपील की। ये मैं सरकार से हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि जितना रेट किया है इससे कम किया जाए कि गरीब तबका ना ये आसानी से खरीद सके। और ये लाइन अगर लाइन ख़त्म की तो मेहरबानी होगी। बड़ी मुश्किल से सुबह रोज़ रख के आदमी आते हैं और बड़े जलील होते हैं। लाइनों से ये छुटकारा मिले तो बड़ी मेहरबानी होगी।
चावल सुपर बासमती पुराना 300 रुपए से कम करके आम मार्केट में 280 रुपए जबकि मॉडल बाजार में 275 रुपए फी किलोग्राम। चावल सुपर बासमती नया 270 रुपए से कम करके 260 रुपए और मॉडल बाजार में 255 रुपए फी किलोग्राम कर दिया गया। रोटी तंदूरी 100 ग्राम 15 रुपए, नान सादा 20 रुपए, आलू समोसा 50 रुपए, चिकन समोसा छोटा 40 रुपए और पकौड़े 550 रुपए फी किलोग्राम तय पाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। पेट्रोल लगाओ, कतार में इंतजार करो और बचत करो सिर्फ 1 रुपए की। फैसलाबाद के मॉडल बाजार और सरकारी नरखों में सिर्फ 1 रुपए का फर्क। फैसलाबाद के मॉडल सहूलत बाजार में रलीफ की बजाय गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाने लगा। सरकारी नरखों और जंग रोड पर वाक़ सहूलत मॉडल बाजार की कीमतों में सिर्फ 1 रुपए का फर्क। आलू कच्चा छिलका 45 की बजाय 44, आलू सफेद बगैर फर्क के 35 रुपए, प्याज 245 की बजाय 244, टमाटर 140 से कम होकर 147 रुपए मिलने लगे। अदरक, लहसुन चाइना, लीमू चाइना, फूल गोभी, टिंडी, भिंडी तोरी, घिया कद्दू, बैंगन, पालक, गाजर सिर्फ 1 रुपए कमी के साथ दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं खरीदारी के लिए दूर दराज से आते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 1 रुपए का रलीफ मिला है। 1 रुपए का फर्क है जी। बंदे ने कितने शहरों आना कितने मॉडल बाजार लैन वास्ते फिर बंदा उत्थों लै लवे, उन्होंने तेल का खर्चा बहुत हो जाता है इहदे नालों बाजार नालों। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई के दौर में हकीकी रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में रमजान बाजारों की किल्लत, ओपन मार्केट में मुनाफाखोर माफिया भी मुतहरक। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का समंदर उमड़ आया। फैसलाबाद इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस रमजान बाजारों की किल्लत। गुज़श्ता साल इंतजामिया की जानिब से 19 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए थे। सस्ते बाजारों की किल्लत के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का समंदर उमड़ आया। ताजरों का कहना था कि गैर मामूली रश के बायस स्टोर्स का सिस्टम भी काम करना छोड़ गया है। रमजान बाजार के 2 फायदे थे। सस्ता तो जो वो मिलना है वो मिले या ना मिले, एक जगह पे साफ सुथरी जगह पे हमें वहाँ पे शॉपिंग करने का मौका मिल जाता था। सारी चीजें इकट्ठी, सब्जी, फ्रूट, हर चीज मिल जाती थी। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर का मजीद कहना था कि रमजान बाजार कम होने के बायस मार्केट में मुनाफाखोरों को लूटने का मौका मिल गया है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा, फौरी तौर पे जो जिली इंतजामिया उनको कहें, एक तो सस्ते रमजान बाजार है उनको फाल किया जाए, और दूसरा जो है आके कोई हमसे भी मुशावरत कर ले, लेबर की जितनी भी है हमसे, हम उनको आईडी कार्ड दे देते हैं, उनको गाइड कर देते हैं कि ये लोग डिजर्विंग हैं। ताजरों का मानना है कि रमजान बाजारों की मदद से गरीब तबका धक्के खाने से बच जाता है। ओपन मार्केट में कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट नहीं लगा रहा, जिस पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां और दीगर इंतजामिया के इदारे भी खामोश हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान नेगेबान पैकेज मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने का मिशन। फैसलाबाद में 1,77,779 मुस्तहिक अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई। बाद में रमजान पैकेज के तहत 3,50,000 मुस्तहिकीन में से 1,77,779 की वेरिफिकेशन मुकम्मल। मजमूई तौर पर 87,581 घरानों को राशन की फराहमी की जा चुकी। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि राशन पैकेट घरों की दहलीज पर पहुंचने चाहिए। चिन्योट में निगहबान राशन की पैकिंग का अमल तातुल का शिकार। बेसन न होने से पैकिंग मुतासर होने से निगहबान पैकेज की तकसीम भी मुअत्तल। निगहबान राशन की पैकिंग न होने से लालियां और बुहाना में फूड हैम्पर्स की तकसीम शदीद मुतासर। रूटीन में 5,000 और गुज़श्ता रोज सिर्फ 800 अफराद को तहसील चिन्योट में फूड हैम्पर तकसीम हो सके। क्वालिटी ठीक न होने से बेसन का ट्रक फूड अथॉरिटी चेकिंग के बाद वापस भिजवा दिया। क्वालिटी की बेहतरी के लिए बेसन की दोबारा पैकिंग शुरू कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में रमजान राशन की तकसीम में गफलत पर महकमा रेवेन्यू के पटवारी मुअत्तल होने वाले पटवारियों में उसामा हसन, अली रजा, अब्दुल वहीद और मोहम्मद एजाज शामिल हैं। उधर समंदरी में भी फराज में गफलत पर 3 पटवारी मुअत्तल कर दिए। टोबा टेक्सिंग में रमजान राशन की तकसीम में गफलत पर जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा रेवेन्यू के 4 पटवारियों को मुअत्तल कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में मुअत्तल होने वाले पटवारियों में उसामा हसन, अली रजा, अब्दुल वहीद और मोहम्मद एजाज शामिल है। पटवारियों ने घर घर जाने की बजाय एक ही मकाम पर राशन तकसीम किया था। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि जिला में राशन की तकसीम पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक राशन तकसीम करने वाली टीमें इस बात की पाबंद है कि वो राशन घर घर जाकर तकसीम करें, लेकिन मुअत्तल होने वाले पटवारी ग्रुप की सूरत में राशन तकसीम कर रहे थे। समंदरी में भी राशन की तकसीम में गफलत पर एसी सलमान मंशा की कार्रवाई। पटवार सर्कल 438, पटवार सर्कल 467 और पटवार सर्कल 478 की चेकिंग प्राइस में गफलत बरतने पर 3 पटवारी मुअत्तल। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पटवारी अली रजा, एहतशाम अहमद और फायजा असलम को मुअत्तल किया गया। एसी समंदरी फराइज में गफलत बरतने पर सख्त एक्शन लिया। जंग की सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकदान, बैरून अजला के ताजरों ने रुख करना छोड़ दिया। तंग सड़कों के बायस ट्रकों का मंडी में दाखिल होना मुश्किल। कोल्ड स्टोर
भी ना होने के बराबर ज़ेरे तामीर सब्जी मंडी रोड ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जंग में मसाइल के अंबार खस्ता हाल सब्जी मंडी आड़तियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। 20 कनाल रकबे पर मुश्तमिल मंडी गुंजान आबाद इलाके में वाक़या है। तंग गुजरगाहों के बाइस बैरून अजला से आने वाले ताजरों ने आना छोड़ दिया। आड़तियों की ट्रकों का सब्जी मंडी में दाखिल होना मुश्किल हो गया। रही सही कसर सब्जी मंडी रोड की तामीर में अल्तवा ने पूरी कर दी। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान गुड्डू खान का कहना था कि सब्जी मंडी रोड 8 माह से ज़ेरे तामीर है। खुले मैन होल और तामीराती सामान के बाइस गुजरना महाल हो गया। सब्जी मंडी वक्त हाजरा के मुताबिक छोटी हो गई है। ये शहर के गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है। इसके आगे कब्रिस्तान है, जिसकी वजह से ये सब्जी मंडी तंग हो गई है। और ऊपर से ये हुआ कि 8 माह से ये सड़क जो है ना, जो मेन सड़क है वो तामीर हो रही है। 8 माह हो गए हैं, वो सड़क अभी तक उसी तरह तामीर हो रही है। सड़क पे जगह जगह बजरी और रेत के ढेर लगे हुए हैं, मेन होल खुले हैं, जिसकी वजह से जिम्मेदार अपना माल इस मंडी में लाना कम पसंद करता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने सब्जी मंडी के हवाले से आड़तियों के मसाइल पर काबू पाने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग में टीबी अस्पताल आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम ना हुई। ठेकेदार की जानिब से आर्जी तौर पर बंद किए जाने वाला रास्ता 1 साल बाद भी ना खोला जा सका। जंग में टीबी अस्पताल आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। गुलाम नबी ब्लॉक की तामीर का काम मुकम्मल हो गया, मगर टीबी अस्पताल का रास्ता ताहाल बंद है। ठेकेदार ने तामीराती काम की गर्ज से आर्जी तौर पर रास्ता बंद किया, जिसे 1 साल बाद भी न खुलवाया जा सका। टीबी के मरीज और दीगर दफातर जाने वाले साइलिन को मुश्किलात। घूम कर जाना पड़ता, आर्जी तौर पर बंद किया था, अब उधर से जाना पड़ता और बहुत मुश्किलात पेश आती। घूम कर जाना पड़ता, रश भी होता है उस तरह। टीबी अस्पताल जाने वाला मेन रास्ता खुलवाया जाए। मरीजों और लवाहिकीन ने इंतजामिया से दरख्वास्त कर दी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। गैस चोरी की रोकथाम के लिए मुहिम 24 घंटे में 250 से ज्यादा सनतकारों और कमर्शियल कनेक्शंस की चेकिंग की गई। SNGPL की सुई गैस चोरी की रोकथाम के लिए मुहिम, घरेलू के बाद कमर्शियल और सनती कनेक्शन की चेकिंग में तेजी। 24 घंटों में 250 से ज्यादा सनती और कमर्शियल कनेक्शन की चेकिंग। दौरान कार्रवाई 8 मशकूक मीटर तब्दील और 15 घरेलू कनेक्शन मुनक़ता किए गए। सुई गैस चोरों और गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एसओ की स्पेशल टास्क फोर्स ने 24 घंटे में 30 बिजली चोर धर लिए। बिजली चोरों को 60,000 से ज्यादा डी बिल चार्ज और 21,83,000 के जुर्माने आए। बिजली चोरों के खिलाफ मुतालिका थानों में मुकदमा दर्ज। फेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। फैसलाबाद में मलिक कॉर्पोरेशन नामी कंपनी के टैक्स फ्रॉड केस में पेशरफ्त। एफबीआर ने शोकस नोटिस का जवाब न देने पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उधर कस्टम्स इंटेलिजेंस ने रवा माली साल में 27 करोड़ के स्मगलशुदा सिगरेट्स भी पकड़ लिए। मलिक कॉर्पोरेशन नामी कंपनी के टैक्स फ्रॉड केस में पेशरफ्त। एफबीआर ने फ्रॉड की गई रकम जमा न कराने और शोकाज नोटिस का जवाब न देने पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मलिक कॉर्पोरेशन ने 700 मिलियन रुपए से जायद के कारोबार पर टैक्स चोरी की थी। टैक्स अदा न करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इससे कबल मलिक कॉर्पोरेशन कंपनी के सिर्फ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई थी। मुल्क भर में स्मगल शुदा सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त का धंधा, कस्टम्स इंटेलिजेंस की भी भरपूर कार्रवाइयां। रवा माली साल के दौरान 27 करोड़ रुपए के स्मगल शुदा सिगरेट पकड़े गए। फैसलाबाद समेत मुल्क भर की मार्केटों में स्मगल शुदा सिगरेट की फरोख्त न रोकी जा सकी। कौमी खजाने को सालाना 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया जाने लगा। सिगरेट के गैर कानूनी धंधे के बायस कानूनी तरीके से कारोबार करने वालों को भी हौसला शिकनी हो रही है। दूसरी तरफ कस्टम्स इंटेलिजेंस के आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के दौरान नॉन कस्टम पेड सिगरेट के खिलाफ 15 बड़ी कार्रवाइयां की गई। 27 करोड़ रुपए के स्मगल शुदा सिगरेट पकड़े गए। जब्त किए जाने वाले सिगरेट पर 18 करोड़ से ज्यादा कस्टम ड्यूटी चोरी की गई। इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद किसी माफी के मुस्तहिक नहीं।